اور آپ کا جو پوری جماعت دھڑم سے زمین پہ آ گری ہے، اور آپ کا جو جماعت کا صرف نیوٹرل کے لفظ سے آپ کی جماعت کا شیرازہ بکھر گیا ہے، یہ حال تو کبھی میں نے کسی تانگا پارٹی کا نہیں دیکھا۔ یہ تو مطلب آپ نے نیب کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے ایف آئی اے کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے جو اینٹی کرپشن ہے اس کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سازش کر کے سامنے آئیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے کوئی آپ کی گنتی پوری کر کے دے۔ تو گنتی تو آپ کی کبھی بھی پوری نہیں تھی، گنتی نہ آپ کی 2018 میں پوری تھی، نہ آپ کی گلگت بلتستان کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے اے جے کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے سینٹ کے الیکشنز میں گنتی پوری نہیں ہے، اور آج بھی آپ کی گنتی پوری نہیں ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے آپ کی گنتی پوری کر کے دے، کوئی آپ کے لیے آپ کے مخالفین کو جیل میں ڈالے، آپ کو اکیلا میدان میں رکھے، آپ کے لیے میڈیا کو مینیج کرے، آپ کے لیے اور سارے جو ادارے ہیں ان کو مینیج کرے، آپ کے لیے وہ آپ کے مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ نہیں کر رہا یا کرنے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں؟ کیا پیغام آپ دنیا کو دے رہے ہیں بھائی؟ اور بات یہ ہے کہ اگر آئین کی پاسداری، دیکھیں نیوٹرل ہونا کیا ہے؟ آئین کی پاسداری ہے نا، وہ ہر محب وطن پاکستانی، چاہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ کوئی اگر جو آئین احکامات دیتا ہے، آئین اپنی جو آئین کی اگر کوئی پاسداری کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی، اتنا ناراض ہونے کی اور اتنا مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی ایک اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ آپ کے جو الیکٹورل پراسپیکٹس ہیں، جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کی جو کارکردگی رہی ہے جس میں مہنگائی، قیامت خیز مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، گورننس نام کی کوئی چیز پورے پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی، اور اس سب کے باوجود آپ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے جو جماعت ہے وہ ساری ٹوٹ کے بکھر گئی ہے۔ لوگ آپ کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، آپ کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کو اپنی اگلی پولیٹیکل فیوچر کی فکر ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں، اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں، یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں، یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا، آپ کی گیم از ناؤ اوور۔ میڈم میرا سوال یہ رضا فیروز ٹی وی سے ہو۔ میڈم میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جائے گا طریقے سے اس کو 10 لاکھ لوگوں سے گزرنا پڑے گا۔ اوہ بھئی 10 بندے تو آپ سے اپنے پورے نہیں ہو رہے اور آپ 10 لاکھ بندوں کو نکالنے چلیں۔ بھئی اپنے 10 بندے پورے کر لو، آپ کو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، میرے خلاف انٹرنل سازش ہو گئی، چور مل گئے، ڈاکو مل گئے، سازش ہو گئی۔ پھر جب آپ کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی میرے خلاف، اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے سے آپ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود ہونے کے باوجود آپ کی پوری پارٹی آپ کے ریت کی طرح کھسک گئی ہے، نکل گئی ہے ہاتھوں سے۔ تو آپ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ پرفارمنس دکھائی ہوتی، عوام کا خیال رکھا ہوتا، آپ نے کوئی عوام کی بھوک افلاس کے بارے میں سوچا ہوتا، مہنگی چینی، مہنگا آٹا، مہنگی بجلی، مہنگی دال، مہنگا تیل، مہنگا پیٹرول، مہنگا ڈیزل، اس کے بارے میں آپ نے قیمتوں کے بارے میں کبھی سوچا ہوتا تو آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور بات یہ ہے کہ کبھی آپ ان کو کہتے ہیں، اپنے ممبران کو آپ کہتے ہیں کہ بک گئے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدے ہیں۔ بھئی جو پہلے ہی پارٹی سے نکلنے کو خریدا تو اس کو جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی ہو کہ وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا، جو پہلے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اگر آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتی ہوں۔ ابھی سینٹ کے الیکشنز کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، کس طرح آپ نے اپنی
माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदला। सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी थी, आपकी माइनॉरिटी थी। किस तरह आप सेनेट में जीत गए? उस वक्त क्या किया था आपने, ज़रा काइंडली बताएं। उस वक्त क्या खरीदो फरोख्त की थी, या आपने उस वक्त कोई प्रेशराइज़ किया था अपने मेंबरान को और अपोजिशन के मेंबरान को, या उस वक्त आपने हॉर्स ट्रेडिंग की थी? और अगर वो उस वक्त जायज़ थी तो आज आपको क्या इशू हो रहा है? और आप कभी उनको कह रहे हैं कि ये लोग बिक गए, कभी वो उनको लोटे कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और साथ ही आप एक उनको कहते हैं कि आ जाओ मैं माफ़ कर दूंगा। तो आप हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने। वो आपको देखिए, वो जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं, चाहे वो MNAs हों, MPAs हों, उनको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देखना पड़ता है। और मैं कभी कभी कुदरत पे हैरान होती हूँ, अल्लाह ताला के जो काम है उस पे हैरान भी होती हूँ। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा कि उसकी सियासत ख़त्म हो गई, उसको आपने जेलों में डाला, आपने उसकी बेटी को जेलों में डाला, उसकी पूरी जमात को जेलों में डाला, सज़ाए मौत की चक्कियों में आपने डाला, और आज उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा है। तो ये जो आपको ये जो इबरत का निशान आज आप बने हुए हैं, आपको आज एक एक दो दो सीट्स वालों के घर के पास जाके उनके दर पे हाज़िरी देनी पड़ रही है। तो मुझे वो वक्त भी याद आता है जब कोयटा में हज़ारा बरादरी लाशें रख के अपने सामने बैठी हुई थी और आपको आवाज़ दे रही थी। आप उनके हुक्मरान थे, जाली सही लेकिन आप उनके हुक्मरान थे। मैं वहाँ गई, मैंने देखा पूरे पूरे ख़ानदान उजड़ गए थे, दफनाने वाले कोई नहीं बचे थे। वो लाशें आगे रख के आपको बुला रहे थे और आप कह रहे थे कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मरी में लोग मनो बर्फ तले दब गए, कोई नहीं पहुंचा उनकी हालत ज़ार पूछने के लिए, आवाम को देखने के लिए। तो ये तो आपका हाल था, तो आप तो ब्लैकमेल नहीं होते थे। आज आप एक एक दो दो सीट्स वालों के दर पे जब मैं आपको सर झुकाते देखती हूँ तो मुझे बड़ा अल्लाह ताला का खौफ आता है। आप आज मकाफाते अमल का शिकार हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। अपने तकब्बर का, अपने गरूर का, अपने बड़े बोलों का शिकार हुए। और फिर आप कहते हैं कि आपके खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि किसी मुल्क को आपके खिलाफ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। मुझे पहले ये बताएं कि अब आपको आज याद आ गया कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है आपके ख़िलाफ़, और दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हैं आपके ख़िलाफ़ साजिश करने में, और आप कहते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं। कल आपने भारत की तारीफ़ भी की, खुद मुख्तारी की, और मैं क्योंकि खुद मुख्तार हूँ, मेरी खुद मुख्तार एक फ़ॉरेन पॉलिसी है, तो उसकी सज़ा मुझे मिली है। तो मैं आपको आईना दिखाना चाहती हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर पहले तो आप बाइडन साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे और पूरी कोशिशें कर रहे थे कि वो किसी तरह आपको कॉल कर लें, और वो कॉल जब नहीं आई तो आपको खुद मुख्तारी याद आ गई। अभी चंद महीने पहले की बात है कि जब आप अमेरिका गए थे, वहाँ से वापसी पे जब आप कश्मीर का सौदा कराए थे, तो आप कह रहे थे कि मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो उस वक्त आपकी खुद मुख्तारी कहाँ सो रही थी? तो किसी को आपके ख़िलाफ़ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो साजिश वाला प्रोपेगेंडा है ना, ये आप ना करें। लोग हंसते हैं आपके ऊपर, आपकी ना अहली, आपकी ना लायकी, आपकी ना समझी, आपकी ना आकबत अंदेशी की वजह से पाकिस्तान ने आज हर मुल्क जो है वो उसको आपने नाराज़ कर दिया। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हिस्टोरिकली आपके दोस्त रहे हैं, आज वो भी आपसे नाराज़ बैठे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मुल्क किस तरह चलाया जाता है, फॉरेन पॉलिसी किस चीज़ का नाम है, और किस तरह आपने एक एक गिन गिन के मैं आपको गिनवा सकती हूँ किस तरह आपने ताल्लुकात ख़राब किए। दूसरे मुल्कों ने आपको तहाइफ दिए, आप उनको जाकर 5 मिलियन रियाल में बेच आए। तो आप पाकिस्तान की क्या तस्वीर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? और आज अगर आप अपनी नाकामी, नालायकी, ना आकिबत अंदेशी को अगर आप साजिश का नाम देंगे तो दुनिया हंसेगी आप। मरियम साहबा, आपके एक वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान, वो बनी गाला पहुंचे हैं सीट लेके, और कहा यह जा रहा है कि नून लीग के बाद MPAs उनके हाथ में हैं। पंजाब की सूरत क्या है? बड़ी मज़े का खेज बात है। और सवाल जी? मैम, आपने इसी जगह खड़े होकर ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट होती है, वो बगैर किसी मदद के कामयाब नहीं होती, मदद के बगैर नहीं जाती। और आज जो तहरीक समाज पेश की गई है, क्या ये बगैर किसी की मदद की आई है?
बग़ैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी से भी कामयाब हो सकती है। जी ये तो अब डिसीजन सिर्फ मेरा तो नहीं है, ये तो सब बैठेंगे, अपोजिशन पार्टीज़ बैठेंगी, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारी जमात के सदर हैं, ये सबके साथ मिलके ये फैसले होंगे इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। मैडम ये बता दें, ऐसे वक्त में आप अपने इत्मीनान की तहरीक ला रहे हैं जब हुकूमत अपनी तहरीक की वजह से सब कुछ खो बैठी है, तो क्या वजह कि क्या किसी तरीके में इत्मीनान ना कर रहे आप इमरान खान के सियासी शहीद तो नहीं कर रहे, और नियो न्यूज़ पे तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम की वजह से उनकी बंदिश भी शुरू कर दी है। देखिए बंदिश ये इस तरह से लोगों को चुप कराने के, ज़बरदस्ती डराने धमकाने के तो दिन गए। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है, अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें 4 साल बहुत होते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और अगर आप ये समझते हैं, आप उस दिन तकरीर में मैं इमरान खान साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अहमकाना बातें आजकल वो करते हैं और एक एक बात से उनका डिफीटिस्ट माइंडसेट जो है वो झलकता है, और उनकी जो तकारीर हैं वो एक हारे हुए शख्स की तकरीर होती है। उसमें कभी वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी वो करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि आवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है, अब उनके हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है। और जो बात आपने की कि देखें, अगर वो ये समझते हैं कि उनको शहीद होने का मौका मिल जाएगा, तो वो जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने आवाम की खिदमत की होती है। मुझे भी अभी भी वो वक्त याद आता है जब कभी कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन आज सिर्फ 4 साल के बाद, पौने 4 साल के बाद, आज अवाम नवाज़ शरीफ को आवाज़ दे रही है। आज नवाज़ शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह जमात चट्टान की तरह खड़ी है, एक शख्स नहीं टूटा नवाज़ शरीफ साहब की जमात से। और मुझे वो वक्त भी याद आता है, देखिए नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनको भी उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल और पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ी हैं, लेकिन कभी उन्होंने तहजीब का दामन, तमीज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी जलसों में खड़े होकर ये धमकियाँ नहीं दी कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे पता है कि ये धमकियाँ वो अपोजिशन को नहीं दे रहे, क्योंकि अपोजिशन ने तो उनका अताब जो है, उनका जो जुल्म है, उनके मजाले में उनको 4 साल बर्दाश्त किया है, फिर भी खड़े रहे। ये धमकियाँ वो किसी और को सुना रहे हैं। आप समझती हैं इमरान रूहानी कमजोर हो गए? और दूसरी बात ये कि कोई उनको ये समझाने वाला भी नहीं है कि ग्रेस अंडर प्रेशर क्या होती है। मतलब हम भी उन्हीं मरहलों से गुजर कर आए हैं, लेकिन कभी गालम गलोच नहीं की, कभी ज़बान दराजी नहीं की, कभी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, कभी बोहतान नहीं लगाया, असूल पर बात की है, फैक्ट्स पे बात की है। और आप जब तकरीर करने खड़े होते हैं तो आप मज़हब का नाम लेते हैं। कभी आपने रियासत मदीना का नाम लिया और आपने अवाम के ऊपर बदतरीन मजालिम ढाए, और अब आप कहते हैं कि अमर बिल मारूफ का मतलब है कि नेकी का हुक्म दो और नहीं अनिल मुनकर कि आप बुराई से रोको। तो आपने जो अपने जलसे का नाम रखा है अमर बिल मारूफ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सी नेकी है, कौन सी अच्छाई है जिसका हुक्म दे रहे हैं लोगों को? क्या आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपने जो आटे की कीमतें, चीनी की कीमतें, डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, दाल की कीमतें, दवाइयों की कीमतें आपने आसमान पर पहुँचा दी हैं, तो क्या उस अच्छाई में आपका साथ दें? या आप खड़े होकर जब जलसों में बदतमीज़ी करते हैं, बदतहज़ीबी करते हैं, अपने मुखालिफिन को नाम ले लेके बुलाते हैं? कभी मौलाना फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, आप उनके मुखालिफ बात कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, आप उनके ऊपर सियासी बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप खड़े होकर इल्काबात से नवाजते हैं, तो आपको वो हदीस नहीं पता? एक हदीस ये भी है, या कन्वीनियंटली आपने वो चीज़ याद, मज़हब के लिबादे में अपनी बदतमीज़ी को उड़ाना है, तो वो भी एक हदीस है कि नाम लोगों के नाम रखने से और उनको इल्काबात से नवाजने से मना किया है, तो वो आप कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। तो क्या लामहला आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि जो शख्स ये भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकता, जो शख्स रूहानियत को रूहानियत कहता है,
जो शख्स ख़ातमुन नबीन अपने हल्फ में नहीं कह सकता, उसको क्या ये हक हासिल है कि वो दूसरों पे तनकीद करे? बल्कि जो आपने कल्चर बदतमीज़ी का, बदतहजीबी का पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं बतौर माँ अपनी पाकिस्तान की माँओं से ये गुजारिश करती हूँ कि आजकल जब एक ज़हनी तवाज़न ख़राब शख्स अगर टीवी पर आकर बदतमीज़ी करता है और बदतमीज़ी की तरगीब देता है, तो अपने बच्चों को काइंडली वहाँ से उठा दिया करें कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर ये कल्चर जो है वो सरायत करे। मैम ये बताइए कि तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल जो रियासती इदारों के खिलाफ आज प्रोपेगेंडा कर रहा है, देखिए, मैंने पहले भी इस बात का जवाब दे दिया, मैं एक दफ़ा फिर से जवाब दे देती हूँ कि अगर न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपकी अब मदद को कोई नहीं आ रहा और न्यूट्रल का आप ये मतलब निकाल रहे हैं कि वो सब आपको आके बचाएं, तो देखिए न्यूट्रल होने का मतलब इसी की जिद्दोजहद हमने भी की है। और हर आइन पसंद शहरी, आइन एक पाकिस्तान का आइन है, उसकी पासदारी ज़रूरी है और अगर उसकी पासदारी करना कोई कर रहा है तो ये अच्छी बात है, इसको तो वेलकम करना चाहिए, इसी के लिए तो हमने स्ट्रगल की है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो गालम गलोच आजकल आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तहजीब के दायरे में रह के बात करें, गालम गलोच नहीं। हम क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करके आए। कभी नवाज शरीफ साहब को आपने देखा है कि स्टेज पे चढ़ के वो किसी को माइक पकड़ के धमकियां दें कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ख़तरनाक हो गया हूँ, तो और मैं जब आऊँगा तो मैं और ज़्यादा मैं अंदर। भाई तुम कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सके? कर चुके हो तुम ये सब काम, इसी वजह से तुम्हारा आज ये हाल हुआ है, ये मत भूलो। तो गालिम गलोच से नहीं, तहजीब से, तमीज़ से बात करो, बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल मत करो। मैडम ये बता दें, मेरा सवाल ये तब्दीली लाने वाले वालों का भी हिसाब होगा, या फिर इमरान खान का हिसाब होगा? ये तो अल्लाह ताला बता सकता है। देखें, मैंने आपको पहले बताया कि जो 3 साल में 4 साल में हो गया है, इसको कहते हैं इबरत का निशान। और जो वक्त ने, जो कुदरत ने, जो मैं यही कहूँगी कि इतने आपके चेहरे पे ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़े कि आप बात करने के काबिल नहीं रहे। मरियम साहब, आप समझती हैं कि मुअक्कल कमजोर पड़ चुके हैं और रूहानी साया भी खत्म हो गया है? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने, मैं एक PDM की मीटिंग में मौजूद थी जब उन्होंने ये कहा कि पोलराइजेशन सोसाइटी में बहुत, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है और हमें सब जमातों को साथ लेकर चलना है और हमें सबको सियासी धारे में, कौमी धारे में लाना है। तो मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान ने जो पोलराइजेशन को उन्होंने फ़रोग़ दिया है, हमें उसका सद्देबाब करना है। हमें तमाम कुव्वतों को साथ लेकर चलना है। हमें एक नेशनल कंसेंसस, नेशनल रेकन्सिलिएशन की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान फिर से जो है वो तरक्की के सफ़र पे। मैडम ये बता दें कि इलेक्शन का भी दौर शुरू हो जाएगा, अगली वज़ीर आज़म किसको देख रही है? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या कोई नया चेहरा? मैंने आपको इसका जवाब दिया है जी। और कोई सवाल है? मुफ्ती मुद्रा ये कह रहे हैं, मुफ्ती मुद्रा बार-बार ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म किसको देख रही है? देखिए, मैं नहीं, देखिए ये तो अल्लाह ताला को पता है और ये इंशाल्लाह बैठ के फ़ैसला करेंगे। हमारे कैंडिडेट तो शहबाज शरीफ साहब हैं और मैं जो बात अभी करना चाहती हूँ वो ये है कि देखें, अभी मुझे पता चला है कि अब कोर्ट में भी अपोजिशन गई है आज सुप्रीम कोर्ट में और ये डिले करना चाहते हैं। तो देखें, आइन कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आप कभी इधर मोड़ दें और कभी इधर मोड़ दें। आइन में साफ तौर पर लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाना चाहिए। तो 14 दिन तो 22 मार्च को पूरे हो जाते हैं और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको वोटिंग करानी। अब देखिए, आप, मुझे नहीं पता आप टाइम क्यों बाय करना चाहते हैं। तो आइन को, आइन ना समझने की, आइन की बात ना मानने की, आइन के अहकामात ना मानने की सज़ा एक ही है और वो है आर्टिकल 6। तो मैं अदालतों की तरफ भी देख रही हूँ कि इस शख्स को आइन का हुलिया बिगाड़ने से, अपनी हुकूमत को बचाने की खातिर इससे रोका जाए और ये एक प्रेसिडेंट ना सेट किया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मैडम, किसी कुव्वत के आने का इम्कान तो नहीं?
نہیں, اور دوسری بات یہ کہ میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اب ہار چکا ہے اور پاکستانی عوام کے نشانے پر ہے, ایسے شخص کے احکامات بجا نہ لائیں اور خواہ مخواہ اس سارے جو آئینی اور قانونی پروسیس میں بالکل بھی جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے, ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. جادو ٹونا بے اثر ہو گیا ہے اور تھینک یو جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. نون لیگ